Hello students, now we have to start chapter number 3, political parties, subject political science. There are two types of political parties: nationalist political parties and regional political parties. There are 7 nationalist political parties, but regional parties are very large numbers. First, we have to understand political parties. When people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations are called political parties. When people come together, जब लोग इकट्ठा होंगे, पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो मतदान का जो प्रोसेस है, और वो एक्वायर पॉलिटिकल पावर, वो पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेंगे। सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द social organization. Political parties act as a link between government and the people. Political parties एक काम करता है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच का एक लिंक है, जोड़ने का काम करता, कड़ी है। Political parties need support of the people. और पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कैप्चर पावर एंड रिटेन इट। पॉलिटिकल पार्टी का मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, पावर को कैप्चर करना और उसको बना कर रखना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी है और एक उनका एजेंडा है, उस पर वो काम करेगी। Political parties act as a link between government and the people. Political parties act करती है, एक लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट और लोगों के बीच की। Political parties are the social organization. Political parties एक social organization है। Political parties need support of the people. लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। बट ट्रू फॉल्स में भी आने वाला है। ट्रू फॉल्स के अंदर आपको देगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। देन वी हैव टू राइट द this statement is true, then we have to write the political parties convey the demands and complaints of the people to the government. पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की डिमांड्स रहती, जो कंप्लेंट्स रहती है, वो गवर्नमेंट को बताती है।
information about various government policies and schemes are conveyed to the people by the political parties। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और स्कीम्स है उसको भी वो लोगों को बताती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। इस तरह आप लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स के लिए आएगा तो। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। State whether the following statements are true or false, then they give reasons, so we have to write down the statements is true, ठीक है। then we have to write first reason is when people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसके पहले वो बताया हम आपको डेफिनेशन, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, फर्स्ट रीजन इज कंप्लीटेड। देन द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सॉल्व करती प्रॉब्लम लोगों की, ठीक है। Hence, political parties are the social organization. Their reason is completed. Political parties need support of the people. Then we have to write the statement is true. Okay. Then we have to write first reason is political, the main objectives of the political parties is to capture power and retain it। first reason, first objectives is the first reason of this political parties need support of the people। the party which solves the issue related to the welfare of the people gets support। without the support of the people they can never get a mandate। लोगों को सपोर्ट के बिना वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी नहीं कर सकती। hence all political parties requires support of the people। their reasons are completed। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे अब वन पार्टी सिस्टम। इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पॉलिटिकल पार्टीज, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेट के, कोई भी कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी बहुत समय तक पावर में रहती है और दूसरी कोई भी पार्टी पावर में नहीं आती, उसे वन पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे। देयर एग्जाम्पल इज चाइना, देयर इज ओनली वन political parties remain in power। next, two party system। two party system in politics, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two party system। अगर किसी
कंट्री में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक के बाद कभी वो आ जाती कभी वो वाली पार्टी आ जाती है, तो पावर में रहती है। दिस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम। देयर एग्जाम्पल इज अमेरिका एंड इंग्लैंड। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ओके। when many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called multi party system। बहुत सारी पार्टीज जिस कंट्री में रहेंगे और वो कभी न कभी पावर में आते रहती हैं, इस तरह की पार्टीज़ को, पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। देयर एग्जाम्पल इज इंडिया, देयर आर वेरियस पार्टीज, रीजनल एंड नेशनलिस्ट पार्टीज। चेंजिंग फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। Indian National Congress was the only dominant party in states and at the center after independence। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर रूल कर रही थी। बट ऑल अदर पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म कोअलाइजन इन 1977 एंड डिफीटेड द कांग्रेस। बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है 1977 में लड़ी और कांग्रेस को डिफीट की। आफ्टर 1989 नो सिंगल पार्टी गॉट अ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। 89 के बाद कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी। सो डिफरेंट पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म अ कोअलाइजन गवर्नमेंट। डिफरेंट जो पार्टीज़ थी वो साथ में मिलकर आई और वो कोअलाइजन गवर्नमेंट बनाई। बोथ भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस ट्राइड टू इस्टेब्लिश कोअलाइजन गवर्नमेंट, यानी दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है कोअलाइजन की गवर्नमेंट बनाती रही है। नेशनल पार्टीज इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देयर आर 7 नेशनलिस्ट पार्टी इन इंडिया। टू गेट recognition as a national party, the election commission has prescribed the following conditions। नेशनलिस्ट पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन रखे हैं, कुछ कंडीशंस रखे हैं। उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉलो अप करेगी तो उसको इलेक्शन कमीशन नेशनलिस्ट पार्टी रिकॉग्नाइज कर देगा। फर्स्ट इज a political party should secure minimum 6% of the valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha और स्टेट असेंबली इलेक्शन। अगर जो पीछे के जो लोकसभा
का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 6% वोट ले लेगी और 6% वोट अगर वो पा जाती है, 4 या मोर 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर जो है, तो उसको स्टेट 4 मेंबर्स, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। अर्लियर इलेक्शन जो पहले इलेक्शन हुआ था उसमें 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको एमपी बोलते हैं, अगर वो 4 मेंबर अगर चुनकर आ गए हैं तो उसको नेशनलिस्ट पार्टी रिकॉग्निशन कर दिया जाएगा। दूसरी भी कंडीशन है या द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% constituencies out of the total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 states। अगर लोकसभा में कम से कम उसको जो है 2% जगह पर वो वोट जीत चुका है, इलेक्शन जीत चुकी है, और कम से कम जो है 3 स्टेट के अंदर उसके कैंडिडेट जीते हैं, तो उसको जो है उस पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन कर देगा। जो पार्टीज ये कंडीशन को फॉलो करेंगी उसको ही नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से ये पार्टी चल रही है। इक्वल राइट्स फॉर द वीक एंड माइनॉरिटीज़, इक्वल राइट्स दिलाने चाहती है वीक लोग को और दूसरे जो है माइनॉरिटीज़ को। सेकुलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड इक्वल राइट्स, सोशल वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़, these are the characteristics of the Indian National Congress Party. This is the symbol of Indian National Congress Party. This party is established in the 1885. Communist Party of India, based on Marxist philosophy, opposed capitalism, worked for the welfare of laborers and the worker community. This is the symbol of Communist Party of India. Communist Party of India established in the year 1925. Communist Party of India Marxist, a breakaway group from Communist Party of India. कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी ब्रेक होकर एक दूसरी पार्टी बनी, वो लोग ने नाम रखा उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर एंड वर्कर कम्युनिटी। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द मार्क्सिस्ट। दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट established in 1962. भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ which was formed in 1951, merged with जनता पार्टी in 1977.
भारतीय जनसंघ ये पार्टी बनी थी 1951 में और ये जनता पार्टी के अंदर मर्ज हो गई 1977 में। इन 1980 जनता पार्टी फर्दर स्प्लिट टू फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। 1980 में जो जनता पार्टी जनसंघ भारतीय जनसंघ से मिलकर बनी थी वो फिर टूट गई पार्टी और एक नई पार्टी बनी, वो भारतीय जनता पार्टी। इनकी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी टू प्रिजर्व इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। दिस इज द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेस्ड सोशलिस्ट फिलोसॉफी, समाजवादी फिलोसॉफी पे काम करने वाली पार्टी है। वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी कंप्रेजिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका काम तब पिछड़ा जो वर्ग था, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज़ के इनके स्ट्रगल को जो है इनको ऊपर लाना। द पार्टी एम टू ब्रिंग द मेजोरिटी बहुजन कम्युनिटी टू पावर। जो बहुजन कम्युनिटी है इनको मेजोरिटी में लाना, इनको पावर में लेकर आना। सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1984। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। It got recognition as a national party in 2016। 2016 में नेशनलिस्ट पार्टी बनी। Supports values of secularism and democracy। The party has the policy of giving protection to the weaker section। इसकी पॉलिसी है वीकर सेक्शन को सपोर्ट करने की। दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दिस पार्टी established in the year 1998। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, a breakaway group from the Congress Party, believed in values like equality, democracy and secularism। कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी है पार्टी, बिलीव इन लाइक इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। दिस इज द सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी established in 1999। Their chief is Sharad Pawar। Regionalism। India is a vast country with a great physical diversity। बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी, और यहाँ पे ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। पीपल जो है अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस है। ईच वन फील्स एन affinity for language, tradition, culture, history and region।
सबको अपने लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और रीजन के सम्मान पाने की ज़रूरत फील होने लगती है। दिस एफिनिटी डेवलप्स रीजनल प्राइड। ये जो एफिनिटी है वो डेवलप्स करती है रीजनल प्राइड। पीपल स्टार्ट गिविंग प्रिफरेंसेस ओनली टू देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री एंड रीजन। दिस इज नोन एज रीजनलिज्म। Role of regional parties. They give importance to regional problems. Development of one's own region is the prime objectives of these party. रीजनल पार्टीज़ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। समटाइम्स द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट एट ऑटोनॉमी। कभी कभी वो जो रीजनल पार्टीज़ है वो अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट भी करने की लिए कोशिश करते हैं। मेन रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया: शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, etc. There are various regional parties in our India. To get recognition as a regional party, the Election Commission has prescribed the following conditions. इलेक्शन कमीशन ने रीजनल पार्टी बनने के लिए भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड दिए गए हैं। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। लोकसभा में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में कम से कम उसको जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए, या 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन विधानसभा। स्टेट असेंबली में विधानसभा में अगर उसको 2 मेंबर चुनकर आ गए तो उसको उस पार्टी को रीजनल पार्टीज रिकग्निशन इलेक्शन कमीशन दे देगा। Second condition is, or political party should secure minimum 3% of seat out of total seat of Vidhan Sabha State Assembly और minimum 3 seats। पॉलिटिकल पार्टी को अगर 3% सीट जो है टोटल सीट जो विधानसभा की, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसमें से अगर उसको 3% सीट मिल गई या उसको सिर्फ 3 सीट भी मिल गई तो उस पार्टी को रीजनल पार्टीज इलेक्शन कमीशन बना देगा।